अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे फोटोसिंथेसिस को, दैट इज़ द फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट, दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफस एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। The word autotroph is a combination of two words, auto that means self and trophos means nourishment. It means these are those organisms which are self processing. That means they are obtaining their own food and are not dependent on others. What will they do? Organisms synthesize their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water. ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना फूड है ना, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला के बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। What are inorganic substances? We will discuss in a separate video. We can make differentiate between inorganic and organic. Hope you will subscribe the channel and that will video will be get in a few days. Example: green plants and autotrophs are also called as producers because they feed the whole world. Now, second mode of nutrition is heterotrophic nutrition. Here, heteros means others and troph means nourishment. It means these are those organisms which are dependent on others for their food. For their food. Organisms obtain food from plants and other animals. They depend directly or indirectly on green plants. यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो हेटेरोट्रॉफस है वो ऑटोट्रॉफस पे डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली बात करें हम या इनडायरेक्टली बात करें। सर डायरेक्टली हम क्या बात करें? फॉर एग्जांपल हर्बिवोरी। जो हर्बिवोरस एनिमल्स है वो ग्रास को ईट करते हैं, यानी कि वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। नाउ इनडायरेक्टली क्या हुआ? अगर मैं लाइन की बात करूं, लाइन इज ए कॉर्निवोर एंड ये हर्बिवोर को ईट करता है या अदर कॉर्निवोर्स को ईट करता है। दैट मीन्स herbivores are dependent on plants and carnivores are dependent on herbivores. That means indirectly depend on green plants. For example, animals, fungi, and human beings are the examples of heterotrophic mode of nutrition. Now, today's main topic is photosynthesis. Here, photo means light and synthesis means to produce. It means these organisms are also called as photoautotrophs. Photoautotrophs. It means these are those autotrophs which will utilize sunlight and will prepare their food. They will utilize sunlight to prepare their food. Now, what is the classical definition of photosynthesis? Photosynthesis is the process by which green plants synthesize complex organic food. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं सिंपल बात करूं, यहाँ पर ग्लूकोज की बात हो रही है। यहाँ पर ग्लूकोज की बात हो रही है। फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll.
You can here see it 6 times carbon dioxide plus 12 times water. In the presence of sunlight and chlorophyll, we can get glucose, that's the simplest carbohydrate. And oxygen is released in the air, and also water is expelled of the plant body via transpiration. यानी कि यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करेंगे फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को। वो कौन-कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये हम आगे देखेंगे। एंड दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Here is pictorial representation of the whole process. Process of photosynthesis. Here it is sunlight that is present in the environment. It will strike on the leaves, and in leaves there is a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll क्या है? ये एक green pigment है। ये असल में काम क्या करता है? It traps sunlight and converts sunlight into chemical energy. एंड वो जो केमिकल एनर्जी मिल गई उसको हम यूटिलाइज करेंगे इन दो को कॉम्बिनेशन करने में, यानी कि इनको रिएक्शन करवाने में। ऑल्सो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। प्लांट विल गेट द शुगर्स और we say the carbohydrates. Carbon dioxide is intake by the leaves of the plant. Also water is from ground. So these are the all resources required for the process of photosynthesis. For photosynthesis to occur, it has two stages. One is light dependent reaction and second one is light independent reaction. So where light dependent reaction occurs, location is grana of chloroplast. यानी कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक सेल ऑर्गनली है। ये एक सेल ऑर्गनली है, only present in green plants. Present in, we can say, photosynthetic organisms. As we know, there are certain organisms which can perform photosynthesis also, so we can call it only not present in the green plants but also in other organisms as well. Process requires direct sunlight. Chlorophyll absorbs light energy to supplement water or called photolysis. यानी कि जो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये इसमें असल में क्या होता है? इसमें फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस क्या होता है? वाटर को ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स कॉल्ड फोटोलिसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। आउटपुट क्या होगा? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, इट मीन्स O2 इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। एनर्जी मॉलिक्यूल ATP एंड NADP आर क्रिएटेड। In light dependent reaction, there is formation of ATP and NADPH and also release of oxygen. ये आप टेक अवे ले सकते हैं इस लाइट रिएक्शन से। नाउ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा? लोकेशन इसका स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। प्रोसेस क्या होगा? डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट सनलाइट एंड ऑकर डे और नाइट, यानी कि ये डे में भी हो सकता है और ये नाइट में भी हो सकती है। कौन? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यूजेस एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो यहाँ पर ATP और NADPH रिलीज हो गए उनको सेकंड वाले प्रोसेस में यूज किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। फिर इसका आउटपुट क्या निकलेगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का? ग्लूकोज यानी कि शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट विल फॉर्म फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं हम बनाते हैं शुगर यानी कि ग्लूकोज को, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। नाउ हम देखेंगे एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। एज वी नो, रॉ मटेरियल्स आर एसेंशियल फॉर एनीथिंग। लाइकवाइज फॉर फोटोसिंथेसिस टू occur, there are raw materials and these are very important to for photosynthesis to occur, like sunlight. अगर मैं सनलाइट की बात करूं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये सनलाइट ही है जिसको क्लोरोफिल ट्रैप करता है और फिर उसको क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
So it is very very important. Second one is chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment present in chloroplasts of the I can say green plants that trap solar energy and converts into chemical energy. After that, we have carbon dioxide. Carbon dioxide is one of the raw material for photosynthesis. It is one of the raw material. Raw material for photosynthesis. Taken from the air through the tiny pores called stomata on the leaves. यानी कि प्लांट इनको कैसे हासिल करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाया स्टोमेटा. What is stomata? In a little bit we will discuss this also. Then water. Water is another raw material for photosynthesis. Raw material. Absorbed by roots from the soil and transport via xylem vessels. यानी कि जो ये वाटर है ये हम जो प्लांट है ये ग्राउंड से एब्जॉर्ब करेगा वाया रूट्स एंड उसके लिए एक कंडक्शन ट्यूब हेल्प आउट करता है यानी कि कंडक्टिव टिश्यू. यानी कि ये जो जाइलम है ये एक कंडक्टिव टिश्यू है कंडक्टिव वेसल है. ये हेल्प आउट करेगी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ chlorophyll and chloroplast. What are chloroplasts? These are tiny food factories inside plant cells, primarily in leaves and young stems. यानी कि ये एक सेल ऑर्गनली है. मैंने आपको बताया ये एक सेल ऑर्गनली है. ऑर्गनली है. उसके अलावा क्लोरोफिल. सर व्हाट इज दिस क्लोरोफिल? Chlorophyll is nothing. It is a green pigment present in the chloroplasts. It gives green color to the leaves. यानी कि it imparts the green color to the leaves. Its primary job is to capture specific wavelength of sunlight, mainly blue and red, to drive photosynthesis. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है जो फोटोसिंथेसिस है ये ज़्यादा होगी किसमें फिर ब्लू लाइट में और रेड लाइट में इसका आउटपुट ज़्यादा होगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अगर मैं यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेटिव देखूँ देखिए ये है सेल वॉल. यहाँ से सेल वॉल है एंड क्लोरोप्लास्ट ये जो यहाँ पर इस तरीके के आपका राउंड राउंड शेप लग रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है और इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर है यही है हमारा क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट. और जो ये सारा बाउंड्री बाहर से है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेल को. ये किसका क्रॉस सेक्शन है? ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम मेसोफिल सेल्स भी देख सकते हैं. नाउ स्टोमेटा द गेटवे. इट इज एक्चुअली a opening tiny pore present on the leaves. Leaves take in carbon dioxide from the air through tiny pores called stomata, singular stoma. यानी कि जो स्टोमेटा होंगे ये प्रेजेंट होंगे लीफ पे. इससे क्या होगा? ट्रेड ऑफ गैस. लीफ के अंदर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और वहां से बाहर निकलेगा ऑक्सीजन टूवर्ड द एटमॉस्फेयर. एंड आल्सो देयर इज लॉस ऑफ वाटर कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन. That's a separate topic. Now what are the functions of stomata? Gaseous exchange, intake of carbon dioxide for photosynthesis and release O2. Transpiration, loss of excess water vapor into the atmosphere. When there is excess amount of water present in the plant, it loses it via stomata, that is called transpiration. Now structure of stomata. These cells, ये जो आपको किडनी शेप्ड सेल्स नजर आ रही हैं इनको हम कहते हैं गॉड सेल्स. क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं गॉड सेल्स. नाउ जो ये येलो कलर सेल्स है इनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स. सब्सिडरी सेल्स एंड जो ये सेल्स इनको ग्रीन में राउंड कर रहे हैं इनको बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स. इनको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स and this is the actual pore is called as stomata. Stomata. Key parts. Stomatal pore, the central opening through which gases passes. यानी कि स्टोमेटल पोर जो है यहाँ पर
एक्सचेंज इसी पोर के वाया एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। फिर गॉड सेल्स, टू बीन शेप्ड सेल्स सराउंडेड द पोर एंड कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि जो मैंने आपको बोला, ये बीन शेप्ड सेल्स है, ये जो बीन शेप्ड सेल्स है ये कंट्रोल करेंगे क्या, दो एक्टिविटीज, एक है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड दूसरा है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोरोप्लास्ट्स, गॉड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स अनलाइक अदर एपिडर्मल सेल्स। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट्स है वो गॉड सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे। फिर आती है लास्ट में एपिडर्मल सेल्स, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स सराउंडेड टू स्टोमेटा। यानी कि ये बाहर वाली है, पहले सब्सिडरी सेल्स है, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, और जो एपिथेलियल सेल एपिडर्मल सेल्स है ये भी क्या है, इनका प्रोटेक्शन नेचर है। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पर हम मैकेनिज्म सुनेंगे। ओपनिंग, इसमें क्या होगा, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गॉड सेल्स दे स्वेल अप एंड बिकम कर्व्ड। यानी कि जब गॉड सेल ऐसी होगी, इसमें वाटर चला जाएगा, ये कर्व्ड बन जाएगी, इस तरीके से कर्व्ड बन जाएगी। जब ये कर्व्ड बन जाएगी देन रिजल्ट स्टोमेटल पोर ओपनस, स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। दिस यूजुअली हैपन्स ड्यूरिंग द डे टू अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये ड्यूरिंग डे होगा, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, वहां पर एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा एंड वहां पर सनलाइट भी प्रेजेंट होगी। नाउ क्लोजिंग, व्हेन वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गॉड सेल्स, जब गॉड सेल से वाटर बाहर निकलेगा तो उससे फिर क्या होगा, दे श्रिंक एंड बिकम सिल्ट्रेट और फ्लैश। यानी कि जब इनमें से पानी बाहर निकलेगा ये सिल्ट्रेट हो जाएंगी इस तरीके से। जब ये सिल्ट्रेट हो जाएगी, जो ये पोर है यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, द स्टोमेटल पोर क्लोज। दिस प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस एस्पेशली एट नाइट और इन ड्राई कंडीशंस। यानी कि ये जो स्टोमेटल पोर को क्लोज करने का मामला है ये क्यों है, यहाँ पर दो चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। एक तो नाइट को देखा जा रहा है क्योंकि नाइट में सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या है, वाटर लॉस। प्लांट ऐसी जगह भी हो सकता है जहाँ पर उसको एक्विटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू दैट प्लांट विच विल रिजल्ट इन द लेस फोटोसिंथेसिस। उसको टैकल करने के लिए फिर प्लांट्स ने ये मैकेनिज्म लाया कि वो जो स्टोमेटल पोर है उसको ओपन एंड क्लोज करेंगे। नाउ विजुअल कंपैरिजन आप देखेंगे ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा की। अगर मैं ओपन की बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्व्ड है दोनों, यहाँ पर ये थिक वाल है, यहाँ पर जब इसमें पानी जमा होता है तो ये आउटवर्ड फोर्स लगता है यहाँ से और ये पोर ओपन हो जाता है। नाउ व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द गॉड सेल्स, तो फिर क्या हो जाता है वहाँ से, ये जो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और ये पोर क्लोज हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको पहले ही बोला, जो रॉ मटेरियल्स होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो उनको अफेक्ट करेंगे। फिर वो रॉ मटेरियल ही फैक्टर बनता है, ये आपको याद रखना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल लाइट इंटेंसिटी, rate increases with the light intensity up to a limit. Extremely high intensity can damage chlorophyll. यहाँ पर ये क्या कोशिश कहने चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ when there is more amount of light, more amount of light available to plant, तो यहाँ पर क्या होगा, more photosynthesis, more photosynthesis, ठीक है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। क्यों, फिर क्या होगा, जब उस लिमिट के बाहर ये सनलाइट अवेलेबल होगी, जो एंजाइम्स होंगे वो अनफंक्शनल हो जाएंगे, वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगे क्योंकि इट विल गिव राइज टू टेम्परेचर आल्सो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देन टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाउ, enzymes work best at optimum temperature 25 degree to 35 degree Celsius. Some books also write 40 degree Celsius. आपको उसमें फोकस नहीं करना है, या डेटा का मसला है, डेटा वेरी हो सकता है। फोकस आपको ये यहाँ पर करना है कि एक आइडियल टेम्परेचर, एक आइडियल मिनिमम रेंज होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। टू कोल्ड और टू हॉट स्लोज डाउन द प्रोसेस, सेम लाइक एज इन द लाइट देयर इज unfunctional of unfunctioning of
एंजाइम्स। यानी कि जो एंजाइम्स होंगे वो अनफंक्शनल होंगे, वो यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर लूज़ कर सकते हैं और अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेंगे एट हाई टेम्परेचर्स और इवन लो टेम्परेचर्स। Then carbon dioxide concentration. High carbon dioxide concentration generally increase the rate of photosynthesis up to a certain limit also. इसमें भी आप लिमिट लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि बियॉन्ड लिमिट, अगर बियॉन्ड लिमिट के कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, वो टॉक्सिक टू प्लांट है, यानी कि वो टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट के लिए। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, उसका मतलब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट वो ज़्यादा है। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, व्हेन देयर इज़ मोर और हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल टू प्लांट, देयर इज़ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो। नाउ एट द लास्ट इज़ वाटर। वाटर को हम कैसे रेट लिमिटिंग फैक्टर बना सकते हैं, किसका? फोटोसिंथेसिस। वाटर डेफिशिएंसी इज क्लोज टू मेटा रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एंड स्लोज डाउन फोटोसिंथेसिस। यानी कि अगर प्लांट वाटर डिफिशिएंट है, तो जो स्टोमेटापोर है वो ऑलवेज क्लोज रहेगा, क्योंकि ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि वाटर को कंजर्व करना है। When there will be less amount of water available to the plant and also the carbon dioxide, it will eventually reduce the rate of photosynthesis. यानी कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का इवेंचुअली रेट डिक्रीज हो जाएगा। हियर इज अ ग्राफ, वी कैन से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ से है, यहाँ से है लाइट इंटेंसिटी। जो ही यहाँ पर लाइट इंक्रीज होता है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है, बट अप टू ए सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट है, यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से फिर से डिक्रीज होगा। तो आपको याद रखना है कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, यहाँ पर हाईएस्ट आउटपुट मिलता है, फिर वहाँ से डिक्रीज होगा फिर। As light intensity increases, the rate of photosynthesis increases initially but eventually levels off. यानी कि यहाँ पर लेवल उसकी ड्रॉप हो जाएगी जब ये लिमिट से बाहर होगी। आई होप आप समझ रहे हो। ये टॉपिक जो फाइलोटैक्सी है, यहाँ पर ये डिस्कस करने के लायक नहीं था, बट इसको हम लिंक करेंगे हाउ इट इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए कैसे। जो फाइलोटैक्सी है, ये क्या होता है? इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। एक ब्रांच पे लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। ये 3 टाइप का होगा: अल्टरनेट अरेंजमेंट, अपोजिट अरेंजमेंट और वर्लर अरेंजमेंट। नो इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस क्या होगा? द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइलोटैक्सी इज टू एंश्योर दैट ऑल लीव्स रिसीव मैक्सिमम सनलाइट एक्सपोजर। यानी कि प्लांट फाइलोटैक्सी को क्यों करता है? ये अपने लीव्स का अरेंजमेंट डिफरेंट क्यों करता है? टू मैक्सिमाइज, टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर करने के लिए ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स को ढूँढता है और रखता है खुद के अंदर, ताकि जो लीव्स है, एक लीव का शेड दूसरे लीव के ऊपर ना आए और वो दोनों क्या करे, सनलाइट को फेस करे। बाय अरेंजिंग इन पैटर्न्स लाइक अल्टरनेट, अपोजिट और वर्लड, लीव्स अवॉइड शेडिंग ईच अदर। यानी कि एक दूसरे के पे साया ना आए, तो दैट्स व्हाई ये ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। मैक्सिमाइजिंग द photosynthetic surface area and eventually there will be more photosynthesis, more photosynthesis। I hope ये पॉइंट आपको समझ में आया। Now here is another important question: why some leaves are not green but they also perform photosynthesis? देखिए क्या होता है। Some plants like Colorus or Coroton have leaves that appear red, violet or brown. This is because they contain a large amount of other pigments like anthocyanins or carotenoids, which mask the green color of the chlorophyll. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। यस, द ग्रीन क्लोरोफिल इज स्टिल प्रेजेंट अंडरनीथ दीज अदर पिगमेंट्स एंड फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूज नॉर्मली। अगर आपको कोई पूछेगा करेगा कि किसी प्लांट का लीफ है वो ब्राउन है, वो येलो है, वो वायलेट कलर का है, वो रेड कलर का है, इज देयर एनी फोटोसिंथेसिस? योर आंसर मस्ट बी यस, एज दे आल्सो have another pigment called chlorophyll that is important for photosynthesis, but these colors are actually due to the pigments anthocyanins and carotenoids. They will mask the green color, but this doesn't mean that there will be no photosynthesis. Yes, there is photosynthesis occur in these plants also. I hope आप इसको समझ रहे हो। Now it is very important. Why is photosynthesis important?
फोटोसिंथेसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसको हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है? पहला इम्पोर्टेंस ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। The survival of almost all living organisms depends directly or indirectly on food made by plants. यानी कि all organism जो वर्ल्ड है वो रन हो रहा है ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किस भी की चीज का? क्लोरोफिल का। अगर क्लोरोफिल कल वाइप आउट होगा फ्रॉम द अर्थ प्लैनेट देयर विल बी नो लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज यहाँ पर फिर फूड नहीं उगेगा। ऑक्सीजन रिलीज, it releases oxygen into the atmosphere which is essential for respiration in animals and humans। यानी कि हमने देखा जो इसका बाई प्रोडक्ट है उसमें एक तो ऑक्सीजन आता है, दूसरा यहाँ पर क्या वाटर आता है। नाउ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन, इट इज यूज्ड फॉर द respiration by other animals and human beings। Now, atmospheric balance, it helps maintaining balance between oxygen and carbon dioxide levels in the atmosphere। हमने पहले ही डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाया स्टोमेटा अंदर जाएगा और इसको फिर किस में यूटिलाइज किया जाएगा? फोटोसिंथेसिस में। यानी कि इसको कंज्यूम किया जाता है, इसका लेवल डिक्रीज होगा एनवायरनमेंट में। बट इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है इसका बाई प्रोडक्ट, वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकलेगा और जो एटमॉस्फेयर में लेवल ऑफ O2 है वो इंक्रीज होगा। यानी कि इन दोनों गैसेस का क्या होगा? बैलेंस होगा ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। अगर इस ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया उससे क्या होगा? वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक टू ऑर्गेनिजम्स, एट लास्ट इट इज वेरी टॉक्सिक टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या होगा फिर? ऑर्गेनिजम्स विल नेवर सर्वाइव। नाउ फॉसल फ्यूल्स, coal, petroleum and natural gases are products of past photosynthesis stored in the earth। देखो कैसे, जस्ट इमेजिन दिस इज अ प्लांट, ये प्लांट है, यहाँ से फ्लड्स आ गए, ये गिरेगा नीचे, देन लेयर ऑफ सॉइल विल ग्रो ईयर बाई ईयर टू इट। जब इस पे एक बार मिट्टी आएगी फिर दूसरी बार भी मिट्टी आएगी, हर साल मिट्टी आती जाएगी, इवेंचुअली ये बहुत नीचे चला जाएगा और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। हाई प्रेशर जब क्रिएट होगा और उसके साथ साथ अर्थ के नीचे हीट भी है, ये दोनों चीज़ें इसको जला के रखेगी और फिर एक तो कोल बनेगा, फिर पेट्रोलियम बनेगा या नेचुरल गैस बनेगा, जो प्रोडक्ट होता है किसका? एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का। सर फोटोसिंथेसिस कैसे इसको बनाएगा? देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या होगा? फूड बनेगा, प्लांट के लिए फूड बनेगा, वो फूड प्लांट स्टोर करेगा अपनी बॉडी में, जब वही नीचे गिरेगा फिर वही कन्वर्ट होता है किसमें? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल एंड अदर गैसेस। आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर लर्निंग अबाउट द प्लांट न्यूट्रिशन।